نئے بجٹ میں تنخواہدار طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار۔ حکومت نے 50,000 روپے سے زائد ماہانہ تنخواہ لینے والوں پر انکم ٹیکس بڑھا دیا۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ٹیکس ڈبل کر دیا گیا۔ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس 5% کر دیا گیا۔ ماہانہ 2500 روپے دینا ہوں گے۔ سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 15% کر دیا گیا۔ ماہانہ 15,000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ سالانہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 25% عائد ہوگا۔ ہر ماہ 35,834 ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ، پینشن میں 15% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کا 18,870 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 12,970 ارب روپے۔ موبائل فون، سیمنٹ، کاغذ، سگریٹ، امپورٹڈ گاڑیاں، برانڈڈ ملبوسات، جوتے، لیدر پروڈکٹس مہنگی، برآمدی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ ختم۔ $50,000 کی درآمدی گاڑیوں پر ٹیکس اور ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ریٹیلرز پر سیلز ٹیکس 15 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ اسٹیل، کاغذ کی مصنوعات اور بال بیئرنگ کی درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی گئی۔ شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی عائد۔ سیمنٹ پر FED کو 2 روپے سے بڑھا کر 3 روپے فی کلو کرنے کی تجویز۔ تانبے، کوئلہ، کاغذ، پلاسٹک کے اسکریپ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا۔ ڈیزل اور پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے تک بڑھا دی جائے گی۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا حجم 5,390 ارب روپے متوقع۔ تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کی طرف سے اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے لیے NFC کی مد میں پنجاب کو 3700 ارب روپے ملنے کا تخمینہ۔ صوبے کی اپنی آمدن کا تخمینہ 1,027 ارب روپے لگایا گیا۔ بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 800 ارب، تعلیم کے لیے 600 ارب، صحت کے لیے 406 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر 5% FED ٹیکس لگ گیا۔ 1 جولائی سے فائلز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس 15%، نان فائلز کے لیے ٹیکس کی شرح 45% ہوگی۔ نان فائلر تاجروں کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 2.25%۔ غیر تنخواہ دار افراد پر زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح 45%۔ موبائل فون پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق موبائل فونز کی مختلف اقسام پر سیلز ٹیکس کی یکساں شرح عائد ہوگی۔ موبائل فون پر ڈیوٹی کی مد میں 24 ارب 81 کروڑ روپے کا ہدف مقرر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سولر پینل کے لیے خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایت کا اعلان۔ سولر کے پلانٹ، مشینری اور منسلک آلات، سولر پینل، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری کے خام مال میں ٹیکس میں رعایت ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 200,122 ارب روپے، مختص ترقیاتی بجٹ 1,500 ارب روپے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 274 ارب روپے قرض ہوگا۔ PSDP کے لیے 1,400 ارب روپے کا بجٹ مختص۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 100 ارب روپے اضافی قرض رکھے جائیں گے۔ بجلی اور گیس پر 1,363 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر۔ کہا، وفاقی حکومت کی خالص آمدن 9,119 ارب روپے ہوگی۔ ٹیکس محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے رکھا گیا۔ وفاق کے اخراجات میں سے 9,775 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے وزیر خزانہ نے کہا، کراچی کی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جامع پیکج کی تجویز۔ K4 منصوبے کے لیے خطی رقم رکھنے کی تجویز۔ کراچی میں 8 ارب روپے کی لاگت سے IT پارک بنایا جائے گا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، بے نظیر آباد میں بھی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ الیکٹرک کو بجلی کی مد میں 174 ارب۔ حکومت کو نجکاری سے 30 ارب روپے ملنے کی توقع۔ آئندہ مالی سال لیویز اور فیسوں سے 24 ارب 80 کروڑ سے زائد وصولی کا تخمینہ۔ موبائل ہینڈ سیٹ لیوی سے 10 ارب روپے کی وصولی کا تخمینہ۔ PTA کے ذریعے
1 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। 4G लाइसेंसेस से 32 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूली का तखमीना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जरिए 10 अरब से जायद वसूली का तखमीना लगाया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी का अमल चंद माह बाद शुरू किया जाएगा। आइंदा माली साल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 593 अरब तक ले जाई जाएगी। ई-बाइक्स के लिए 4 अरब, तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट सेनेट में भी पेश तहरीक इंसाफ का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, मुआशरी कत्ल नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास आज 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी गई। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हुकूमत की बैड गवर्नेंस का खमियाजा अवाम भुगत रहे। बजट से पहले पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज। बजट इजलास का बायकॉट। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास छोड़कर घर चले गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन भी न आए। इसहाक डार की इस्तदा पर सिर्फ खुर्शीद शाह, नवीद कमर अलामती तौर पर ऐवान में शरीक हुए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जमातों के रहनुमा आज फिर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी PSDP में सिंध और जनूबी पंजाब के शेयर्स पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती टीम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इसहाक डार का पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने का दावा। खुर्शीद शाह कहते हैं कि PSDP के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बजट में तनख्वाहों और किसानों के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज बता रहा है, चीजें बेहतर नहीं, NSC अवार्ड तब्दील करना होगा। साबिक वजीर मिफ्ताह इस्माइल की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहिए था। पेंशन रिफॉर्म जरूरी है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो सरमायाकार सरमाया नहीं लगाएगा। विफाक के पास तो कर्जों का सूद अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। वज़ीर खजाना अपने वादे पूरे न कर सके। 1995 से 2000 के दरमियान हम भारत और बांग्लादेश से आगे थे। ऐसा क्या हुआ? हम दोनों मुल्कों से पीछे चले गए। बजट ताजिर दोस्त नहीं, कारोबार का कातिल है। सनत को बड़ा नुकसान होगा। ताजिरों और सनतकारों का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि खाम माल पर ड्यूटी लगाने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। बिजली की कीमत में भी पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में जायद है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं कि नए टैक्सेस के नफाज से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। आबाद के पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी कहते हैं कि हुकूमत ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई है। बेरोजगारी में इजाफा होगा, अवाम दिवालिया होंगे, बची हुई सनत भी बंद हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कारोबार चलाना मजीद मुश्किल कर दिया गया। सरगोदा में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हरासा करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने आज ही पंजाब उस्मान अनवर को आज तलब कर दिया। RTO सरगोदा DPO को भी पेश होने का हुक्म। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जज ATC सरगोदा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। जज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। नामालूम अफराद की जानिब से हरासा किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से जायद रहने का इम्कान। डीजी खान का पारा 49, सिबी में 48 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सिंध के अजलास, सखर, दादो और मौजोदाड़ो में भी शदीद गर्मी रहेगी। फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बालाई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कनाडा से फतह के बाद पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा पहुंच गई। 16 जून को आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड से टकरा होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले तक रसाई अगर मगर से निकलकर मौसम के रहमो करम पर। बादलों ने फ्लोरिडा में बसेरा कर लिया। पूरा हफ्ता बारिशों का खदशा।
जुमे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 98% तक इम्कानात। वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान की छुट्टी पकी। पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ भी मैच हर सूरत जीतना है। इतवार को दोनों टीमों का मैच भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। नाज़रीन, बानी पीटीआई शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I9 में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई क़यादत पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, इस महफूज फैसले से मुतालिक मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि बानी पीटीआई के लिए एक तरह से ये बड़ा रिलीफ है। जिस हद तक उनके ऊपर मुकदमात हैं, उस हवाले से ये जो 9 मई के तनाजुर में आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा था, उसमें बानी पीटीआई समेत जो दीगर पुरानी और मौजूदा जो पीटीआई क़यादत है, उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से बरी किया है। अदालत ने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, शहरयार अफरीदी समेत जो दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, उनको जो है वो इस मुकदमे से बरी किया है। इस मुकदमे में वकला की तरफ से सरदार मसरूफ और जो आमना अली हैं और अली बुखारी जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जानिब से ये अदालत में दलाइल दिए गए और अदालत ने जो है वो इसमें अदालत ने उनको बरी जो है वो कर दिया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।